پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط۔ کسی ایک ملک پر حملہ، تینوں پر حملہ تصور ہوگا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے معاہدے پر دستخط کیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانا ہے۔ سربراہی اجلاس کے دوران تینوں ممالک کے درمیان تاریخی، برادرانہ اور اسٹریٹجک تعلقات کا جائزہ، خطے اور عالمی امن و استحکام سے متعلق اہم امور پر بھی تبادلہ خیال، اجتماعی دفاع اور مشترکہ سلامتی کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، دفاعی شعبے میں ہر سطح پر تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر الحمدللہ کا پیغام، لکھا کہ تاریخی مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط خانہ کعبہ کی حدود میں ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور پاکستانی وفد نے عمرہ ادا کیا۔ کعبہ شریف کی زیارت خاص کی سعادت بھی حاصل کی۔ ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی، امت مسلمہ کی سلامتی اور علاقائی اور عالمی امن کے لیے دعا کی۔ نون لیگ کا ایک خاص حصہ وزیر اعظم کے ہر کوشش کو ناکام کرواتا ہے۔ کوئی ایک فیکشن ہے جو وزیر اعظم کو اپنے اتحادیوں سے بھی لڑا رہے ہیں، وہ خود بھی وزیر اعظم سے لڑتے ہیں۔ اصل لڑائی تو اسلام آباد اور لاہور کا ہو رہا ہے۔ اصل لڑائی لاہور اور اسلام آباد کے درمیان خاندان کی ہے۔ مسلم لیگی دھڑا وزیر اعظم کو اتحادیوں سے لڑوا رہا ہے۔ حکومت کی الٹی گنتی ان کے اپنوں نے شروع کی۔ آج انہوں نے گردن پکڑی، جلد ہی پیر بھی پکڑیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سرکار کو للکار، کہا اپوزیشن کے شوقین ہیں، حزب اختلاف میں ہوتے تو انہیں لگ پتا جاتا۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیگی دعوے ان کی غلط فہمی قرار، خونی الیکشن نامنظور کا نعرہ، کہا عوام کے حق میں تسلیم کیے بغیر سسٹم نہیں چلے گا، نئے صوبوں کی مخالفت کا اعلان۔ فیزز میں پاکستان مسلم لیگ نون نے وہ اکثریت حاصل کر لی ہے جس اکثریت سے آزاد کشمیر میں جو ہے وہ حکومت قائم ہونی ہے۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی سیٹوں سے میجورٹی حاصل کر کے حکومت بنائے گی۔ رانا ثناء اللہ کا ایک بار پھر آزاد کشمیر میں مسلم لیگ کی حکومت بنانے کا دعویٰ۔ آزاد کشمیر کے انتخابات تاریخ کے شفاف ترین الیکشن قرار۔ نون لیگ نے 2 مراحل میں واضح اکثریت حاصل کر لی۔ عوام نے ووٹ کی طاقت سے نون لیگ پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کے مشیر کا حویلی آزاد کشمیر میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا کہ عوام نے نون لیگ پر اعتماد کیا، پنجاب کی ترقی آزاد کشمیر میں بھی لائیں گے۔ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر آزاد کشمیر الیکشن کے تیسرے مرحلے کی شیڈیول کی تبدیلی۔ 10 اگست کو پونچھ کے صرف 4 حلقوں میں پولنگ ہوگی۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق بقیہ 7 حلقوں میں پولنگ کا شیڈیول بعد میں جاری ہوگا۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے فارم 24 کے عدم فراہمی کے دعوے بے بنیاد اور حقائق کے منافی قرار دے دیا اور واضح کر دیا کہ فارم 24 سے متعلق کسی حلقے یا پولنگ اسٹیشن سے کوئی باضابطہ شکایت موصول نہیں ہوئی۔ یمن میں حوثیوں کا سعودی حمایت یافتہ سرکاری فوجی کیمپوں پر بڑا حملہ، میزائل اور ڈرونز کے حملوں میں 58 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ حملہ 2022 کے بعد حوثیوں کی سب سے بڑی فوجی کارروائی قرار۔ سعودی سرحدی شہر نجران پر بھی حوثیوں کے حملے میں خاتون اور بچے سمیت 11 شہری زخمی۔ عراق اور یمن سے سعودی سرزمین پر حملوں کا الرٹ جاری۔ ایران اور عمان آبنائے ہرمز کھولنے کے 60 روزہ عرضی معاہدے پر متفق۔
बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के रास्ते दाखिल होंगे। बाहर जाने के लिए ओमान के करीब समंदरी गुजरगाह का इस्तेमाल किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी से मुआहिदा नाफिज हो जाएगा। आर्जी मुद्दत के बाद ईरान ने जहाजों से 7% और ओमान ने 3% चार्जेस लेने की तजवीज दी थी। अरब मीडिया के मुताबिक 40 ममालिक के जरिए जारी मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल हो गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ी ने 2 बार पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से राबता किया। इसी हफ्ते या अगले हफ्ते दौरे पाकिस्तान भी मुतवक्की। अमेरिका के सदर ट्रंप ईरान के साथ जल्द मुआहदे के लिए पुरुम्मीद। आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने से मुतालिक डील बहुत करीब करार दे दी। वाज़ेह किया कि वो खुद मुज़ाकरात में शरीक हैं। अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरान के खिलाफ जंग जल्द खत्म हो जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां। भारतीय सरपरस्ती में पितनाल ख्वारिज के 10 दहशतगर्द हलाक। आजम वर्कस में चेक पोस्टों पर नाकाम हमले में पितनाल ख्वारिज के 8 दहशतगर्द मारे गए। दीर में एक और कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजीद 2 पितनाल ख्वारिज दहशतगर्दों को हलाक किया। दहशतगर्दों से कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर आला पंजाब का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी फैलाने वाले अनासिर के नापाक अज़ाइम हर कीमत पर नाकाम बनाने का अज़्म। मेरे आरिस के साथ दोस्ती था, वो मुझे यहाँ से ईरान ले गया। फिर वहाँ जाके कुछ दहशतगर्द लोग आए, मुझे मोटरसाइकिल पर उठा के मुझे पहाड़ों पर ले गए। फिर वहाँ मेरा मुलाकात कमांडर कमर ब्रोवी से हुआ, जो BLF का कमांडर था। फिर मैंने BLF कैंप ज्वाइन किया। मैं तकरीबन 6 माह तक उन लोगों के साथ था और मैंने तंजीमी तरबियत हासिल की। फितना और हिंदुस्तान के हाथों ब्लैकमेल। दहशतगर्द अरमान बलोच का दहशतगर्द तंजीम से लाताल्लुकी का ऐलान। अरमान बलोच के मुताबिक दोस्त के साथ रोजगार की तलाश में ईरान गया, जहां दहशतगर्दों ने अगवा करके पहाड़ों पर मुंतकिल कर दिया। कलदम बलोच लिबरेशन फ्रंट के कमांडर कमर ब्रोही से मुलाकात के बाद दहशतगर्द तंजीम में शामिल हुआ। 6 माह अस्करी तरबियत हासिल की, 2 हमलों में शरीक रहा। तंजीम छोड़कर घर जाने की ख्वाहिश पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अरमान बलोच का नौजवानों को दहशतगर्द तंजीमों के झूठे वादों में ना बहकने का मशवरा। दावतें दे के अब मेरा ख्याल है मैंने तो बंद कर दिया ये कहना कि आप आएँ। मौका उनको पहले भी मिला है, बार बार मिलता है। प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में भी कई दफ़ा बात हुई, तो मैंने कल कोई ऐसी बात नहीं, ना जिक्र हुआ। मीटिंग रूम है, मैं कमरा खाली कर दूंगा अगर करनी होगी। मुज़ाकरात करनी नहीं, उन्होंने वो करना ही नहीं चाहते। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद, ना उसे बातचीत की दावत दी। मुज़ाकरात की दावतें दे देकर थक चुके, अब पेशकश करना ही छोड़ दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आयाज साजिद की साफी से गुफ्तगू। कहा कि हर मसले का हल मिल बैठने में है, मगर सिर्फ मीडिया में कह देने से मुज़ाकरात नहीं होते। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इमरान की मराहत और इस्तेहकाक बिल से ताहयात ब्लू पासपोर्ट की शिक खत्म। सूबाई असम्बली तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी गई। सरकारी ब्लू पासपोर्ट सिर्फ मुद्दत रुकनियत तक कारआमद होगा। अरकान असम्बली के लिए मुफ्त असलहा लाइसेंसों की तादाद दोबारा 4 मुकर्रर। सहाफ़ियों के लिए जुर्माने और सजाओं में भी कमी कर दी गई। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का आज एहतजाज का ऐलान। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ इलाक़ात से काफ़िले श्रीनगर हाईवे पर जमा होना शुरू। रावलपिंडी में कारकुनान सड़कों पर आ गए। पेशावर में जमात इस्लामी के कारकुनान ने मोटरवे M1 ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। चिकन, दालें, प्याज महंगी। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.28% का इजाफा। मजमूई सालाना शरह 9.29% हो गई। वफाकी इदारे शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। कराची में नौजवान मीर रजा की खबर को कुशाई मुअख्खर कर दी गई। खबर कुशाई के लिए आने वाली टीम वापस चली गई। नए मेडिकल बोर्ड पर वालिदैन और वकला ने एतराज किया। दिल पर पत्थर रख कर
कबर कुशाई का फैसला किया था। कल अदालती हुक्म पर पुलिस सर्जन ने मेडिकल बोर्ड का नोटिफिकेशन निकाला, लेकिन रात गए एक और नोटिफिकेशन निकाल दिया गया जिसमें हैदराबाद जाम शुरू से लोगों को शामिल किया गया। अब मीडिया के प्रेशर से कहा जा रहा है कि अपने अरकान भी शामिल कर लें। आईजी सिंध ने मेडिकल बोर्ड बनने से पहले इंक्वायरी मुकम्मल होने और सब कुछ ट्रेस करने का ऐलान कर दिया। ऐसे आईजी पर कैसे यकीन करें? वकील जिब्रान नासिर की मीडिया से गुफ्तगू। को 4 बजे पुलिस सर्जन ने अमल दरामद करते हुए निकाल दिया लेटर। 8 डॉक्टर कर दिए नामजद। हमें आ गया उन पे भरोसा, हम हो गए राजी। फिर अचानक रात की तारीकी में 12 पौने 12 बजे डीजी हैदराबाद, जिनका कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने पूरे बोर्ड को फारिग करके नए 4 नाम डाल दिए जो कि हैदराबाद जामशोरों से आ रहे और हमारा उन पर जरा भरोसा था। मीर रजा के दोबारा पोस्टमार्टम के लिए तीसरा हुक्मनामा जारी। वरसा का तीसरे नोटिफिकेशन को भी कबूल करने से इनकार। वालिद मीर हुसैन का एतमाद में लिए बगैर मेडिकल बोर्ड का नोटिफिकेशन निकालने का दावा। पुराने वाले मेडिकल बोर्ड से कब्र कुशाई कराने का मुतालबा। कहा कि कराची में शायद पढ़े लिखे लोग खत्म हो गए, थर पार कर मिट्टी और हैदराबाद से लोग लाने पड़ेंगे। मीर हुसैन ने इल्ज़ाम आयद किया कि पहले दिन से किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, किसी सूरत पीछे न हटने का ऐलान। लाहौर के थाना टाउनशिप में जेर हिरासत 2 लड़कियों की हलाकत की तफ्तीश जारी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी से लेकर थाने मुंतकली तक की वीडियोज इकट्ठी कर ली गई। हलाक लड़कियों के जेर इस्तेमाल मनशियात की किस्म और मिक़दार का तयन करने का भी दावा। फैसलाबाद में तालिबा को हरासा करने और जान से मारने की धमकियां देने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक लड़की के दोस्ती करने से मना करने पर मुलजिम ने तालिबा को धमकियां दी। नौशहरा में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल बरकरार। अज़ाखैल पायान में मुतादिद घरों की दीवारें गिर गईं, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, मुतादिद खंबे और ट्रांसफार्मर्स गिर गए। वज़ीर आला पंजाब का मानसून के बाद हर शहर में खस्ताहाल इमारतों का सर्वे का हुक्म। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 1 की जल्द तकमील की हिदायत। खुसूसी इजलास में वज़ीर आला पंजाब को आगाह किया गया। 29 शहरों में अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक मुकम्मल बहाल हो गए। 21 शहरों में स्टोरेज टैंक की तामीर जारी है। सिंध के स्कूलों के औकात कार का नया सर्कुलर जारी। सिंगल शिफ्ट प्राइमरी स्कूल पीर से जुमेरात तक सुबह 8 से दोपहर 2:30 बजे और जुमे के रोज सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे। रॉड पीक हादसे में हलाक 5 गैर मुल्की कोह पैमाओं की मैयतें इसकर्दू से इस्लामाबाद पहुंचा दी गई। डॉन मीडिया के ज़ेर एहतमाम 11वीं पाकिस्तान बैंकिंग अवार्ड की सालाना तकरीब 21 अगस्त को कराची में होगी। अवार्ड के लिए नामजदगियों का फैसला बैंकिंग और फाइनेंस के शोबे के माहिरीन पर मुश्तमिल एक खुद मुख्तार और गैर जानिबदार ज्यूरी करेगी। थाईलैंड में स्कूल में फायरिंग के नतीजे में 7 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। हमलावर खुद भी उसी स्कूल का तालिब इल्म था। अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। हमलावर ने फायरिंग से कबल दादा दादी को भी कत्ल किया। मुल्क भर में आज़ादी के जश्न की तैयारियां। शहर शहर सब्ज परचमों और बैगों की खरीदारी जोरों शोर से जारी। हमारी जुबानें अलग लेकिन धड़कनें एक, परचम एक, नन्हे पाकिस्तानियों का पैगाम। मिस्र के मारूफ फुटबॉलर मोहम्मद सलाह का तुर्की के बड़े क्लब त्राबज़ोन स्पोर्ट्स से मुआहदा। हज़ारों मद्दाहों की जानिब से मोहम्मद सलाह का इस्तकबाल। द 100 लीग में विल जैक्स के शानदार कैच ने सभी को हैरान कर दिया। पहले गेंद को बाउंड्री के बाहर जाने से बचाया और फिर अंदर आकर शानदार कैच किया।